lecture we shall be discussing about the unit impulse function, and we'll see the transformations of two types, Fourier transform and your Laplace transform. So you can see, as you can see, this unit impulse function I have taken in continuous time. As you can see, t is continuous time I have taken here, and continuous time we have taken here. And first we'll be discussing about the Fourier transform, and in the previous lecture I have told you how you can relate a Fourier transform to a Laplace transform. That transformation also we'll see. Okay, so first is let's go with the formula. Whenever you are doing Fourier transform, it will change your time t domain into your omega domain. From t to omega means from time domain to frequency domain. For this thing we use either two transforms, either Fourier transform or either a Laplace transform. What is the actually basic difference how you can convert a Fourier transform to a Laplace transform is whichever follows the Dirichlet condition. Dirichlet condition. Okay, we'll be discussing about this condition in subsequent classes. Okay, so first we'll see, we'll go with the formula. Your Fourier transform f omega is given by minus infinity to infinity ft is your function, and e raised to the power minus j omega t dt. You have to be very cautious about this minus here. Many of the students do this problem. Instead of this minus they use the plus, but whenever you are doing the Fourier transform, minus is a must. Okay, while if you are doing the inverse Fourier transform which is opposite of it, तो उस केस में we will use plus sign here. Okay, so we will be putting ft as del t. ठीक है, जो हमारा इम्पल्स फंक्शन है एफ टी की जगह पे हम वो रखेंगे, एंड देन यू विल डू द इंटीग्रेशन. नाउ व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ योर डेल्टा टी फंक्शन? इम्पल्स फंक्शन है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. इफ़ यू सी फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, ओके, सो इट इज़ डिफाइंड ओनली एट टाइम ज़ीरो. ओके, तो टाइम ज़ीरो पे डेल्टा टी फंक्शन जो रहती है इट हैज़ सम वैल्यू, otherwise for rest of the part and for the rest of the time it is 0. So I have written here delta t is 0 at when t is not equals to 0. So it is defined something like this. Okay, so when you integrate this thing and when you integrate at point 0, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो हम टाइम t इक्वल्स टू 0 पे करेंगे. अब यहाँ पे इफ़ वी आर पुटिंग t एज 0 तो हमारे पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 0. सो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1. ठीक है, इफ़ आई एम सेइंग कि x की पावर 0 या 10 की पावर 0, किसी का भी पावर अगर मैं 0 करूँगी तो उसका मतलब आता है, तो उसका आंसर विल बी 1, यूनिटी. ओके, सो इफ़ वी आर पुटिंग हियर एज एक्सपोनेंशियल माइनस 0 and we are doing the integration, then we'll get 1 here. Okay, so you can directly see here delta t ka Fourier transform we are getting as 1. Okay, so let's move towards your Laplace transform. Let's move towards your Laplace transform. So in Laplace transform we are transforming time t into s. तो यहाँ पे हम लोग s डोमेन यूज़ करते हैं. ठीक है, s डोमेन यूज़ करते हैं. सो टाइम t आपका s में कन्वर्ट हो रहा है. अगेन s इज़ नथिंग बट अ फ्रिक्वेंसी डोमेन, तो टाइम t हमसे s डोमेन में चेंज हो रहा है, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला वी जनरली यूज़ फॉर योर Laplace transform. And again we are putting this delta t instead of function ft here and e raised to the power minus st. So by following the same definition जो कि हमने अभी इधर Fourier transform में use किया था, by using this same definition we'll be getting the answer as 1. So you can see here and you can compare these two results. The Fourier transform and the Laplace transform for your unit impulse function is same or unity. Okay, this thing is clear to everyone? Okay, moving on to the next is we are having exponential signals. So exponential signals can be of any type. As I have told you before also कि you have to be very much cautious about
and very much you have to be attentive about the first unit. Means जो भी सिग्नल सिस्टम्स का जो भी बेसिक है वो फर्स्ट यूनिट से ही होगा. मतलब अगर आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स अगर ड्रॉ करने नहीं आते हैं देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मच यूजलेस फॉर यू. तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे सिग्नल्स. अगर आपको पता ही नहीं है कौन से बेसिक सिग्नल्स है तो आप फिर उनको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे. तो देन हाउ यू कैन फाइंड द ट्रांसफॉर्म्स. ओके, सो हम अभी इधर एक्सपोनेंशियल सिग्नल लेते हैं. दिस इज द एक्सपोनेंशियल सिग्नल आई हैव टेकन e⁻⁻⁸ ut. तो इसका मतलब क्या है? यू कैन सी हियर इट इज़ समथिंग लाइक दिस. मीन्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है क्योंकि माइनस इधर आ गया है. at इज सम कांस्टेंट, आई हैव टेकन अ जेनरिक सिग्नल कि ऐसे -2t e⁻t e⁻3t. इट कैन बी लाइक एनीथिंग. ओके, तो कुछ भी हो सकता है ये. at इज़ अ जेनरिक सिग्नल आई हैव टेकन एंड ut, you know, ut is your unit impulse, unit step signal, sorry. So unit step means it is starting from 0 and it is going towards positive infinity. Okay, it is something like this. तो मतलब ये defined कहाँ से है हमारा 0 से and in the positive axis. Okay, चलिए अब हम इसका सबसे पहले निकालते हैं Fourier transform. Okay, Fourier transform is here. तो we are going with the definition से चलते हैं. How it is defined: -infinity to infinity ft e⁻j omega t dt. Okay, and next is we are putting the value of ft as e⁻at. now you can see here कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं. वो हो गई हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. 0 टू इन्फिनिटी क्यों हुई है? क्योंकि जो हमारा ut फंक्शन है, हमारा ut फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड है कहाँ से? वी कैन सी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हमारा वो फंक्शन डिफाइंड है. दैट्स वाई वी हैव चेंज द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ओके, तो वी आर पुटिंग e⁻at एंड दिस. ओके, तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का सिंपल प्रॉपर्टी है अगर पावर है एंड मल्टीप्लिकेशन है देन दिस पावर विल एड अप. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -a + j omega t. वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, नाउ एक्सपोनेंशियल का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये जो कांस्टेंट टर्म था वो हमारा बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो इट विल बी लाइक दिस विल बी अ कांस्टेंट टर्म एंड देन वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ आवर लिमिट 0 और इन्फिनिटी. तो यहाँ पे t पे वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी और 0. तो e⁻∞ एंड -e⁻0. ओके, सो हाउ इट दिस इज 0. वी नो दिस. e⁻∞ कितना होता है? e⁻∞ is infinity. Infinity is nothing but 1/0. ओके, 1/0 को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं विच इज़ नॉन डिफाइंड, अनडिफाइंड. अब अगर इफ दिस इज e⁻∞, दैट मीन्स अपोजिट ऑफ दिस थिंग एंड इट विल बिकम 0. e⁻∞ इज 0. अभी आया कहाँ से? इट इज़ बाय दिस थिंग. ओके, तो दिस इज 0 एंड e⁻0 जो होगा हमारा एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 बिकम्स 1. सो -1 यहाँ आ गया and finalized answer will be getting this. Okay, this final answer will be getting 1/a + j omega. Okay, so this is the Fourier transform. Moving on to the next is very similar your Laplace transform. ठीक है, इसी सिग्नल का हम लोग Laplace transform निकालते हैं. Okay, so ft will be changed to fs. We'll going by this formula e⁻st, and then again how the signals and how the limit has changed that I have told in Fourier transforms. all the things are same. बस j omega की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है? s है in Fourier transform. ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया था? I have explained in previous class कि जो हमारा s होता है, s is nothing but sigma plus j omega, where sigma is your real part and j omega is your imaginary part. Alright, so हम क्या करते हैं कि your Laplace transform can be transformed to your Fourier transform जब हमारा सिग्मा और रियल पार्ट 0 है. अगर सिग्मा 0 है तो हाउ मच वी आर गेटिंग? s हमारा j ओमेगा बन गया. s अगर हमारा j ओमेगा बन गया तो देन यू कैन रिलेट दिस थिंग and this thing here. Okay, so by following the same thing, e⁻ की पावर रखेंगे, लिमिट्स का वैल्यू पुट करेंगे and then you will be getting final answer as 1/a + s. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी जेनरिक थिंग
अब क्या चेंजेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या चेंजेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया, सो योर एफ टी so your ft कैन बी योर, जैसे अभी हमने e रेज टू द पावर माइनस ए टी एंड वी हैव टेकन यू टी हियर, ठीक है, ये है। इसका दूसरा हो सकता है कि e रेज टू प्लस ए टी यू टी। तो ये किस तरह से दिखेगा, इसके अंदर ये बस यही वेरिएशंस हम लोग कर सकते हैं कि इट इज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कोई सिग्नल हो जाएगा, इस तरह का सिग्नल आ सकता है। और यू कैन डू ई रेज टू माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, यू ऑफ माइनस टी करेंगे तो अगेन क्या होगा, आपका लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। इस केस में हमारे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, योर लिमिट्स विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो हो जाएगी हमारी लिमिट्स इस वाले केस में। एंड यू कैन हैव प्लस ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो बस ये कुछ 4 तरह के जेनरिक केसेस हैं जो कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल से हो सकते हैं। जो ओनली डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर माइनस साइन, माइनस का डिफरेंस आ सकता है आपके पास। तो जहाँ पर हमको आंसर जहाँ पर हमको आंसर इस वाले केस के लिए 1/s a प्लस एस करके मिल रहा था, उसकी जगह पे हमें जो भी चेंज हो सकता है माइनस साइन का चेंज आ सकता है। इट कैन बी -1/a प्लस एस और समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह के ये जो अलग क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व कीजिए एंड देन टेल मी द डिफरेंस कि इनसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस आएगा। ओके।